حضرت میں نے یہ آپ ایک جلسے کا پوسٹر دیکھا بھی دربھنگا میں ہونے والا 17 اگست کو، اس میں سے نمبر لیا ہے، اس میں سے نمبر لیا ہے آپ کا. میں بھی دربھنگا سے لیتا ہی ہوں. یہ کہ یہ بریلی مولانا ہے ہمارے گاؤں کے، ان کو میں بولتا ہوں کہ بھئی آپ لوگ شرک اور بدعت میں مطلب مبتلا ہو، یہ فاتحہ نیاز وغیرہ یہ مدد، یہ بزرگان دین کی مدد، یہ سب. تو وہ بولتے نہیں ہم نہیں ہیں، تم ہی اور شرک اور بدعت میں، تمہارے عالموں نے، تمہارے جو عالم ہے وہ سب شرک اور بدعت میں ڈوبے ہوئے ہیں، ایسا بولتے ہیں. ذرا بات کریں. ہیلو وہ مولانا صاحب بات کرو. بات کرائیے آپ کے مولانا سے. فون پہ نہ کریے، آپ سامنے بیٹھ کر کے بات کرائیے، ٹھیک ہے؟ فون پہ چندہ تو فون پہ لیتے ہو مولانا صاحب، چندہ تو فون پہ لیتے ہو، ساری دعوت تو فون پہ ہڑپتے ہو، اور آپ جو ہے سامنے لائیے بول کے بول رہے ہیں. ہاں کیا دعوت تو سب فون پہ ہڑپتے ہو، اور جو ہے چندہ بھی فون پہ لیتے ہو، اور بات کرنے کی باری آئی سامنے لے کے آئیے. بھائی جب اللہ نے آسانی دی تھی آسانی کو اختیار کرو. آپ کس سے بات کر رہے ہیں مولانا؟ آپ کو میں جس سے بھی بات کر رہا ہوں آپ نے سامنے لے کے آئیے، تو فون پہ بات کرنے میں کیا دقت ہو رہی ہے؟ آپ بتائیے نا، آپ جو شرک کرتے ہو آپ کے شرک کو میں ثابت کروں گا. میں نے سنیے میری بات پریل بھی مولانا صاحب آپ تھوڑا سا اس سے بات کیجیے. ہاں نہیں میں عزت سے بات کروں گا، میں کوئی اخلاقی نہیں کروں گا. پہلے تو تمیز آپ نے ختم کیا، آپ نے تو پہلے کہا کہ نہیں سامنے لے کے آئیے. جب مجھے گزرا ہے میں سامنے ابھی آ نہیں سکتا. بیٹھ کے بات کیجیے، فون پہ بھی بات کر سکتے ہیں. فون پہ بات چیت نہیں ہو پاتی ہے. کیوں نہیں ہو پاتی؟ ابھی آپ کی بات میں سن رہا ہوں، میری بات آپ سن رہے ہیں، کیا دقت ہے؟ آپ کوئی ہمارا کوئی بدعت یا شرک بتا دیجئے، اور نہ آپ کا شرک ہم بتا دیتے ہیں، 1 منٹ میں بتا دیتے ہیں، 2 منٹ کے اندر آپ کو مشرک ثابت کروں گا. اچھا چلیے ثابت کیجیے آپ. ہاں تو ایک بات آپ ہے، بات کر رہے ہیں نا، چلیے ثابت کیجیے آپ. کیا نام ہے ان کا جنہوں نے فون کیا؟ مدثر صدیقی. ہاں آپ کو میں نے ایک فوٹو بھیجا آپ کا براہین قاطعہ کا جو فوٹو بھیجا یہ مولانا سب کو بھیجیے. ارے میری بات کیجیے، پرانی بات کو چھوڑیے. اب میں ابھی آپ کو میں ثابت کر کے دکھاؤں، ابھی آپ کا ثابت کر کے دکھاؤں ابھی آپ کو. آپ کا شرک براہین قاطعہ پرانی بات کر رہا. پرانی بات کیا ہے؟ براہین قاطعہ اور واقعہ وہ سب کر لیے، سامنے آ کر کے بات کریے گا. توبہ کر لیے. پرانی بات ہے نا، پرانا شرک آپ کا، تو اس سے تو پہلے توبہ کرنا چاہیے. آپ کا جو براہین قاطعہ شرک ہے اس شرک سے آپ کو توبہ کرنا چاہیے. اس کے بعد جو ہے نئی باتیں اگر ہماری کوئی شرک ہے ابھی. ارے تو چلو پرانی بات ہو گئی، جس نے لکھا جو کہا وہ چلے گئے. تمہارے اس میں تو ابھی بھی سارے جتنے مزارات ہیں سب پہ سجدے ہو رہے ہیں. تو وہ سجدہ میں کر رہا ہوں، عوام ہمارے جتنے مزار ہیں سب پہ سجدے ہو رہے ہیں. کون سے مزار پہ نہیں ہو رہا بتاؤ مجھے. ہاں تو سجدہ کون سے مزار پہ سجدہ نہیں ہو رہا ہے؟ تو جو سجدہ ہو رہا ہے سجدہ کرنے والے مشرک شرک کر رہے ہیں. کسی کے قبر پہ جا کر کے سجدہ کرنے کی شرک نہیں ہے. بالکل شرک نہیں ہے. کیسے شرک نہیں ہے بتائیے ذرا مجھے. شرک نہیں، کیونکہ سجدہ تعظیمی بھی ہوتی ہے اور سجدہ عبادت بھی ہوتی ہے. پورا سنو، پوری بات سنو نا. تم لوگ عوام کو بھی بتاتے نہیں اور ہم تم کو بتانے نہیں دے رہے. دو طرح کے سجدے ہیں، ایک سجدہ تعظیمی اور ایک ہے سجدہ عبادت. کوئی بھی ان پڑھ مسلمان. ایک منٹ سنو میری بات. پوری بات سنو نا، میری بات پوری ہوئی نہیں. سکتے ہو میری پوری بات ہوئی نہیں میری. سجدہ تعظیمی آپ حدیث سے ثابت کر سکتے ہو کہ کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سجدہ کیا، حضور کے قبر پہ سجدہ کیا ہو؟ پوری بات ہونے ثابت تو میں کر رہا ہوں. میں جب سنوں گا نا قرآن و حدیث سے بات کرو، ادھر ادھر بات کر رہا ہوں، قرآن و حدیث سے بات کر رہا ہوں. اتنے دیوبندی مولانا سنیے، سجدہ تعظیمی حرام ہے اور سجدہ جو عبادت ہے وہ شرک ہے. سجدہ عبادت کوئی مسلمان کرتا نہیں، اگر کوئی کرتا ہے تو حرام کام کرتا ہے. حرام کرنے والا مشرک نہیں ہوتا. شرک کرنے سے اسلام سے خارج ہوتا ہے، اور حرام کام کرنے سے فاسق و فاجر ہوتا ہے، گنہگار ہوتا ہے. اگر سجدہ تعظیمی شرک ہے. یہ آپ کہاں سے بول رہے ہیں کہ کیا یہ کہاں کہ یہ جو آپ بول رہے ہیں کہ سجدہ تعظیمی حرام ہے اور سجدہ عبادت یہ کفر ہے، یہ کہاں سے بول رہے ہیں آپ؟ ہاں تو حدیث کا حوالہ دیجیے مجھے. ہاں میں یہ بول رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہے نا توقیفی ہے اور فراء الورا ہے. اللہ تعالیٰ کی صفات ہمیشہ یکساں رہتا ہے، تغیر سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ، اللہ کی صفات بھی یکساں رہتا ہے، بدلتا نہیں. اور اللہ کی صفات میرے سوال کا جواب نہیں دے رہا، بات گھما رہے ہیں. جواب یہی ہے، میں نے آپ سے یہ بولا سجدہ تعظیمی حرام ہے اور سجدہ عبادت یہ کفر ہے یا شرک ہے.
یہ آپ کہاں سے بول رہے ہیں یہ بتائیے مجھے؟ یہ اس لیے یہاں سے بول رہے ہیں کہ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. بھائی قرآن سے بول رہا ہوں. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے جب فرشتوں سے کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو تو آدم کا جو سجدہ تھا وہ کیا آدم کی عبادت کرنے کے لیے اللہ نے کہا تھا؟ وہ اللہ کا حکم تھا. تو اللہ کا وہ حکم ہمیشہ کیا کے ہے؟ لیے نہیں تھا, وہ ایک ٹائم کے لیے تھا. تو ایک ٹائم کے لیے بھی شرک کبھی حلال ہوتا ہے؟ حرام چیز حلال ہوتا ہے. حرام چیز کسی شریعت میں حلال ہوتا ہے, کسی شریعت میں حرام ہوتا ہے. حلال حرام بدلتا ہے, شرک بدلتا نہیں, کیونکہ اللہ کی صفات توحید اور شرک میں کبھی بھی تبدیل نہیں ہوتی. توحید رہتا ہے ہمیشہ. فرشتوں کے لیے بھی توحید ہے, ہمارے لیے بھی توحید ہے. اچھا چلیے, میں اگر پہلی بات تو آپ کی بات ماننے کے لائق نہیں ہے. اگر میں آپ کی بات ماننے لائق نہیں ہے. جتنے مزار ہیں سارے مزاروں پہ حرام کاری ہو رہی ہے, تو وہ سارے مزاروں پہ پہلے شرک اور توحید خلاصہ ہو جائے. مزار پہ کیا ہو رہا ہے وہ پہلے یہاں مزار کا میں ذمہ دار نہیں ہوں. آپ کے مزاروں پہ جو سجدے ہو رہے ہیں سارے مزاروں پہ, کیا آپ کھلم کھلا اس چیز کو کہیں گے کہ وہاں پہ حرام کام ہو رہا ہے؟ ہاں بولیں گے اس چیز کو؟ جی بالکل, ہم 1000 بار کہہ چکے پہلے حرام کام ہو رہا ہے. جہاں ہو رہا ہے حرام ہو رہا ہے. جو کرنے والے ہیں وہ مجرم ہے. علماء کا کام صرف بتانا ہے. علماء کی کام علماء کی ذمہ داری بتانے تک ہے. علماء حق بیان کریں گے. اعمال کرنا نہ کرنا وہ ہر انسان اپنی ذمہ دار خود ہے. ولا تزر وازرة وزر اخرى. اللہ تعالیٰ ایک کے بوجھ دوسرے پر نہیں ڈالے گا. عالم کا کام بتانا ہے. 1000 بار ہمارے علماء بتا چکے ہیں, ہزار بار بتا چکے ہیں ہمارے علماء کہ جو سجدہ تعظیمی ہو رہا ہے حرام ہو رہا ہے. اب باقی بتائیے اس میں شرک کہاں سے آ گیا؟ آپ جو شرک کہے پہلے تو مشرک کہنے والا مشرک کہا جائے گا. سجدہ جو آج کل جہاں پر بھی ہو رہا ہے نا تعظیم کے اعتبار سے ہوتا ہی نہیں ہے. وہ تو سیدھا جا کر کے دھڑک سے ایک دم اس کے پیروں میں گر جاتا ہے اور جا کر کے وہاں پر کر جاتا ہے. اگر دو طرح کے آپ بول رہے ہیں, جو جاہل آدمی اس کو کیا معلوم کہ سجدہ تعظیمی اور سجدہ عبادت کیا ہے؟ وہ مشرک معلوم ہے تو اس کو مشرک ہو گیا. جاہل کو معلوم نہیں کا کام کر رہا ہے, اس کے دل میں ہے کہ اللہ ایک ہے. جاہل کو تو یہ معلوم ہے, جاہل کو تو یہ معلوم ہے ہم اللہ کے سامنے بھی سجدہ کر رہے ہیں, یہ اللہ کے بزرگ ہم ان کے سامنے بھی سجدہ کر رہے ہیں, تو یہ شرک نہیں ہوا. جاہل کو کیا معلوم ہے سجدہ تعظیم اور سجدہ شرک اس کو بھی معلوم ہے, لیکن علماء دیوبند کو معلوم نہیں. تم کو معلوم نہیں ہے, کچھ نہیں معلوم ہے, صرف ادھر ادھر کی صرف بکواس ہے. قرآن تعظیمی سجدہ بھی ہے. قرآن سے ہمارے ثابت کر دیا کہ تعظیمی سجدہ بھی ہے. اور تعظیمی ہے, میں منع نہیں کر رہا ہوں, منع کر رہے تھے. جتنے لوگ سجدہ کر رہے ہیں وہاں پر, یہ کیسے معلوم سجدہ تعظیم کر رہا ہے کہ سجدہ شرک کر رہا ہے؟ تو وہ جب معلوم کر کے بتا رہا ہے بغیر کنفرم کیے آپ مشرک کہہ رہے ہیں, جو بھی سجدہ کر رہے ہیں ان کو مشرک کہہ رہے ہیں, تو پھر شرک آپ پر پلٹتا ہے نا. حدیث میں ہے کوئی بھی اگر کسی کو کافر کہتا ہے, اگر سامنے والا کافر نہیں ہے. آپ کو کافر اور مشرک کے بارے میں فرق ہی نہیں معلوم ہے. مشرک کہہ رہا ہوں, آپ کافر کہہ رہے ہیں. مشرک ہر مشرک کافر ہے. کافر اور مشرک میں آپ کو فرق ہی نہیں معلوم ہے. ہر مشرک کافر کرنے کے لیے. اچھا, ہر مشرک کافر ہے کہ نہیں؟ ہر مشرک کافر ہے یا نہیں؟ تو پھر مشرک اور کافر الگ الگ لفظ کیوں استعمال کیا گیا؟ آپ کو پتہ نہیں ہے. ہر مشرک کافر ہے لیکن ہر کافر مشرک نہیں ہے. کافر ہر مشرک کافر ہے. ارے بھائی اللہ تعالیٰ نے کیوں استعمال کیا؟ پھر کافر ہی استعمال کرنا چاہیے تھا نا. اللہ کافر, جس کو کافر استعمال کیا اونلی کافر ہے, وہ شرک نہیں کر کے بھی کافر ہے. کوئی کہتا ہے کہ جیسا دہریہ ہے, دہریہ کیا ہے؟ مشرک نہیں کافر ہے. اور دہریہ کافر ہے مشرک نہیں. اور ہندو جو ہے کافر بھی ہے مشرک بھی ہے. عیسائی کافر بھی ہے مشرک بھی ہے. اور یہودی کافر بھی ہے مشرک بھی ہے. تو کوئی کافر بھی ہو مشرک بھی ہو سکتا ہے. دیکھیے آپ مولوی ہیں, مفتی ہیں, آپ کو کافر اور مشرک کا فرق معلوم نہیں تھا, اور آپ کو سجدہ تعظیم عبادت کا فرق معلوم نہیں تھا. علماء دیوبند کہاں گھاس کاٹتے ہیں کیا مدرسے میں؟ علم حاصل نہیں کر رہے علماء دیوبند. صرف سند کہاں سے چرا کے لے کے آئے مفتی کی سند؟ آپ ہاں بتائیے, چوری کر کے لائے مفتی کی سند؟ سنیے میری بات, فالتو کی باتیں نہیں کیجیے. فالتو کی بات ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ کافر اور مشرک میں فرق نہیں ہے. کافر کو ہر کافر مشرک میں نے یہ نہیں کہا کافر. تو پھر آپ مشرک کے اوپر کافر کا فتویٰ لگائیں گے, کافر کے اوپر مشرک کا لگائیں گے؟ جو صرف کافر ہوگا. علماء دیوبند نے بریلوی کو مشرک کہا ہے, کافر نہیں کہا ہے. تو مشرک کہنا تو کافر بھی کہنا ہوا, کیونکہ ہر مشرک کہہ رہے ہیں کہ وہ کافر ہے. آپ تو کہتے ہیں کہ مطلب جو مشرک کافر ہے. میں نے کیا کہا؟ آپ علماء دیوبند اگر میں آپ کو ایسی دلیل بھیج دوں گا ابھی بھی. میری بات
पहले तो बात ऐसी करें, दलील भेज दूंगा। जितना दावा आपके अहमद रजा खान ने खुद कहा है बाद में जा करके, मैंने जो मुहन्नद और मुफन्नद जो वहाँ से जो लेकर के आया था वो सारी की सारी चीज़ें पहले मुझे गलतफहमी थी, बाद में फिर उन्होंने इस चीज़ का इजाला किया था, मालूम है आपको? ये झूठ कह रहे हैं आप। और उलमाए देवबंद का अहले सुन्नत वो जमा के अंदर शामिल किया, मालूम है आपको? कहाँ लिखा है? मालूम है आपको? कहाँ लिखा है? मैं आपको दलील भेज देता हूँ। दलील भेज आपके पाकिस्तान के कई बड़े बड़े उलमाए किराम ने, मुफ्तियान किराम ने इस चीज़ को लिखा है। कहीं लिखा हुआ नहीं, कहीं लिखा हुआ नहीं है। आज भी आला हज़रत मुझे अपना सुनिए मेरी बात, आप मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर भेज दीजिएगा, मैं आपको भेज दूंगा। ताज़ीमी को अभी आपने सिजदा ताज़ीमी जो फरिश्तों ने सिजदा किया था, तो थोड़ी देर के लिए जब सिजदा किया था तो थोड़ी देर के लिए शिरिक हलाल नहीं हो सकता। हराम चीज हलाल हो सकता है, हराम चीज हलाल हो सकता है, हलाल चीज हराम हो सकता है, क्योंकि हर नबी की शरीयत बदले हैं, लेकिन शिरक और तौहीद नहीं बदले। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को जो किया था वो आजमाने के लिए किया था, आजमाने के लिए, और उसके अंदर शैतान को आजमाने के लिए कि शैतान किस हद तक जा सकता है। ये भी आपकी गलत, ये भी फरिश्तों आप हर जगह साबित नहीं कर सकते। फरिश्तों को आजमाने के लिए फरिश्ते की कोई गुनाह और गलती नहीं है, मासूम नहीं कर है। सकते हैं। फरिश्तों को आदम की ताज़ीम के लिए सिजदा कराया, ताज़ीम, आदम अलैहिस्सलाम की ताज़ीम के लिए आदम अलैहिस्सलाम के इल्म साबित हुआ कि आदम अलैहिस्सलाम हर चीज़ के इल्म बता दिए, हर चीज़ का नाम बता दिए, तो अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को ताज़ीमन फरिश्तों से कहा सिजदा करो, तो यह सिजदा ताज़ीमी है। सिजदा ताज़ीमी आपको मानना पड़ेगा। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने सिजदा किया था, उनके भाइयों में नबी भी और उनके भाई में मोमिन, सब मोमिन थे, उनके सारे भाई मोमिन थे, और यूसुफ अलैहिस्सलाम की शरीयत में सिजदा ताज़ीमी जायज़ था, और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने भी सिजदा किया। तो गैरुल्लाह का सिजदा, हाँ, ये जायज़ था उस शरीयत में, इस शरीयत में हराम है। तो हलाल हराम में फ़र्क, हर शरीयत में फ़र्क है, लेकिन तौहीद में फरिश्तों की तौहीद और दीगर अंबिया इकराम की और अंबिया इकराम की उम्मत की तौहीद और हमारी तौहीद में कोई फ़र्क नहीं है। वहदहु ला शरीक, वो लोग भी मानना उनके लिए लाजिम था, हमारे लिए भी लाजिम है। शिरक और तौहीद में फ़र्क नहीं है, इबादत में फ़र्क है और हलाल हराम में फ़र्क है, ये बात समझना चाहिए। और जो सिजदा कर रहा है, मज़ार पे जो सिजदा कर रहा है, उसको कन्फर्म करना, हर किसी को जब हुक्म लगाएंगे हर किसी को कन्फर्म करके उसके ऊपर शिरक का या हराम करी का फतवा लगेगा। अगर वो फासिक को फाजिर है तो वो फासिक को फाजिर होने का फतवा लगेगा, लेकिन आप तो उमूमी तौर पर सबको मुशरिक कह रहे हैं, यह आपकी ज्यादती है, जुल्म है। सुन रहे हैं मौलवी साहब? भाग गए? बताइए ये कितना बड़ा जाहिल है, ये कितना बड़ा जाहिल है। बताइए, आला हजरत की किताब में वो पता ही नहीं, उसको पता ही नहीं कि आला हजरत ने जो फतवा लेके आए, आला हजरत ने जो किताब की बुनियाद पे, जिन किताबों की बुनियाद पे फतवा लेकर आए, वो किताब आज भी मौजूद है। उन किताबों में वो इबारात आज भी मौजूद है। उन इबारात पर अगर बात करेंगे आज भी उनका शिरक साबित होगा, उनका कुफर साबित होगा। तो इन कुफर और गुस्ताखी की बुनियाद पे आला हजरत फतवा लेकर आए थे। वो फतवा जब तक उनकी किताबों में गुस्ताखी बाकी है, उनके ऊपर फतवा बाकी है। आला हजरत ने कभी नहीं कहा कि मेरी गलत फहमी थी, मैंने गलत फहमी से फतवा दिया था। गलत फहमी क्या है, सबूत आज भी मौजूद है। अशरफ अली थानवी ने जो कहा कि नबी का जैसा इल्म पागल और जानवर को है, आज भी मौजूद है। तो आला हजरत उसी पर फतवा लेके आए, गलत फहमी कहाँ, वो तो ऑलरेडी मौजूद है। अल्लाह झूठ बोल सकता है, रशीद अहमद गंगोही का अकीदा माज़अल्लाह गंगोही ने लिखा है, तो आज भी फतवा मौजूद है। अब इतना बड़ा जाहिल है, इसको मुफ्ती की सनद किस जाहिल ने दिया है? हाँ, इसको शिरक का पता नहीं है, तौहीद का पता नहीं है, काफिर और मुशरिक का पता नहीं है। हर काफिर मुशरिक नहीं है, बहुत सारे खुदा का इनकार कर रहा है, कुरान का इनकार कर रहा है, किसी की इबादत नहीं करता, वो किसी की भी इबादत नहीं करता। जो मुशरिक वो हुआ जो किसी को अल्लाह के अलावा मतलब इबादत, अल्लाह के अलावा दूसरे की इबादत कर रहा है, बुतों की इबादत कर रहा है, दूसरों को वाजिबुल वजूद समझ रहा है, दूसरे को खालिक व मालिक समझ रहा है, तो वो हो गया मुशरिक। और वो मुशरिक होने के साथ साथ काफिर भी है। और जो दूसरे की इबादत नहीं कर रहा है, सिर्फ अल्लाह की जात व सिफात का इनकार कर रहा है, और वो काफिर है। वो काफिर है। हाँ, अब देवबंदी को कुफर और शिरक के बीच में फर्क पता नहीं है, और जो है हर मुसलमान पर, आवाम पर जो जानता नहीं, वो खुद कह रहा है कि वो आवाम क्या जानता है,
सिजदा ताज़ीमी क्या है, सिजदा इबादत क्या है, फिर वो शिरक कैसे हो जाएगा? और हर आवाम, हर मुसलमान इतना जानता है, हर मुसलमान इतना जानता है कि अल्लाह एक है। इबादत के कलमा तो पढ़ता है, हर मुसलमान पढ़ता है, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। तो वो तो पहले तौहीद का इकरार कर रहा है। वो जिसके कब्र में भी जाके सिजदा कर रहा है, सिजदा करने से पहले उसका यही अकीदा होता है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, इबादत के लायक नहीं। तो कह रहा है कि ये इबादत नहीं है, सिजदा ताज़ीमी है, ये इबादत का सिजदा नहीं है। तो वो नादानी में, कम इल्मी की बुनियाद से हराम काम कर रहा है। जो जानता नहीं, इल्म नहीं है, उसको मुशरिक और काफिर कह रहा है। कोई हिंदू भी जो मजार पे जाता है ना, वो उसको भगवान, वो अपना भगवान मान के नहीं जाता है, उनको बाबा और अच्छा नेक आदमी मान के ही जाता है। हाँ, वो देखिए गैर मुस्लिम का अकीदा है कि हर किसी को भगवान कहता है। वो हर किसी को भगवान, जिससे कुछ भी फायदा हो, नदी को भी उसको भगवान कहता है, नदी से फायदा हो रहा है, नदी का पानी लोग पी रहे हैं, नदी की मछलियां खा रहे हैं, नदी जो है जमीन हरा भरा कर रहा है, नदी को भी भगवान कह रहा है। कोई झाड़ छाया देने वाला झाड़ है, बड़ा दरख्त है, पीपल के पेड़ को भी कहता है। हाँ, वो जिससे भी फायदा हो, बुजुर्गों से फायदा हो रहा है तो बुजुर्ग को भगवान कह रहे हैं। तो वो उनका अकीदे में ही है करोड़ों भगवान है, 33 करोड़ खुदाओं को पूछता है वो, उसकी बात अलग है। मुसलमान एक खुदा जो मान लिया कि सारे मखलूक का पालनहार है, सारे कायनात का बनाने वाला एक है, तो एक वहदहु ला शरीक है, अल्लाह एक है। जिस मुसलमान को कलमा नहीं आता उसको भी हम कलमा पढ़ाते हैं, गाहे बगाहे, जब फातिहा खानी हो या घर में कोई भी प्रोग्राम हो या शादी ब्याह हो, हर जगह हम लोग कलमा पढ़ाते हैं। और कलमा पढ़ाने का भी यही मकसद है कि वो वहदहु ला शरीक का इकरार कर ले। हाँ, तो इकरार जब एक बार करता है, जब तक उसके खिलाफ वर्जी न करे तो वो इकरार कायम रहता है। हाँ, और अगर वो सिजदा कर रहा है तो वो पहले तो इकरार कर चुका, वो जानता है कि अल्लाह एक है। तो कोई भी सिजदा कर रहा है तो वो सिजदा करने से इस्लाम से खारिज नहीं होता, सिर्फ गुनहगार होता है। सख्त गुनाह है, हराम काम करना गुनाह है, तो गुनाह से बचना चाहिए। इस शरीयत में सिजदा ताज़ीमी नहीं है, सिजदा ताज़ीमी हराम है। किसी भी जगह किसी भी बुजुर्ग को, वली को सिजदा नहीं करना चाहिए, सिजदा ताज़ीमी नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग बहाना बनाते हैं, कहते हैं हम तो चूमते हैं। भाई, चूमने भी सिजदे के जैसा कैफियत इख्तियार करना जायज़ नहीं है। चूमने की उतनी ज़रूरत नहीं है। आप जब चूमते हो तो आपके ऊपर लोग शक करते हैं, हराम काम करने का आप पर शक होता है, लोगों को शक में मुब्तला करना भी गुनाह है। और अहले सुन्नत की बदनामी होती है सिजदा करने से। आप हराम करते हो, ये देवबंदी जाहिल मुफ्ती लोग सिजदा पर भी शिरक का फतवा लगा रहे हैं। यहाँ तक कि इनको शिरक का हैजा लग गया देवबंदियों को। शहरा बांधना को भी शिरक कहा, मिलाद मनाने को भी शिरक कह रहे हैं। कोई भी हर चीज को ये लोग शिरक कह के, शिरक कहने में इनको कितना मजा आता है। देखो, कोई फतवा नहीं है, शिरक से नीचे कोई फतवा नहीं है इनको। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह ताला इन जाहिल देवबंदियों को गारत करे और सुन्नियों के ईमान अकीदा इन जाहिलों से अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए, आमीन। हाँ, बोलिए कौन? ये हजरत, जो मैं आपका ये यूट्यूब चैनल पे वीडियो देखता हूँ, वहीं से नंबर लिया है मैंने, जयपुर से बोल रहा हूँ मैं। हाँ, बोलिए ना। जी, मैं सोचा कि आपको सुनाई नहीं दे रहा था, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पीर जुल्फिकार नक्शबंदी साहब जो हैं, पीर साहब जो हैं, हाँ, तो ये एक मेरी मौलाना से बात हो रही थी, तो बोले इनके चक्कर में मत पड़ो, ये गलत है। बोले नहीं, गलत तो नहीं है, जो है नक्शबंदी सिलसिले से ताल्लुक़ रखते हैं। तो आपका मैंने चैनल में देखा कि आप भी नक्शबंदी हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इनाज़र से बात करा दी जाए। भाई, आप नक्शबंदी ही बात करेगा तो ज़्यादा ठीक रहेगा। हेलो, मैं समझा नहीं आप क्या बोल रहे हो। मतलब एक मौलाना साहब है, वो पीर जुल्फिकार नक्शबंदी साहब है ना, हाँ, उनके बारे में गलत बोलते रहते हैं। वो भी यूट्यूब पे ही चैनल है उनका। हाँ, तो मेरी उनसे कई बार बहस हो चुकी है, लेकिन मैं इतनी जानकारी नहीं रखता कि मैं उनको इनसे मतलब डिबेट कर सकूँ, और ना
तो वो जो बताते हैं मैं उनका जवाब नहीं दे पाता हूँ। तो मैं सोचा कि आपके चैनल पे वीडियो डलती है, आप नक्शबंदी हो तो आप कुछ उनसे बात कर सकते हो। ये जो उल्टा पुल्टा है इनके जो एतराज़ है उनको हल कर देते हैं एक बार। नहीं भाई देखो, हाँ मैं सुन रहा हूँ। वो लाइन पे है, 2-3 मिनट बोल के इनका मुंह बंद करवा दीजिए। हेलो, हाँ बोलो। हाँ नहीं कीजिए, बात कीजिए, क्या एतराज़ है आपके? मेरा क्या एतराज़ है, मैं आपको बोला ना कि नक्शबंदी ये है देवबंदी। देवबंदी में नक्शबंदी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उलमा देवबंद का अकीदा जो है मुजद्दिद अल्फ़सानी से मिलता जुलता नहीं है, इसलिए उलमा देवबंद जो है मुजद्दिद अल्फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह को भी बिदअती कहते हैं, बिदअती मानते हैं, क्योंकि उनके किताबों में जो अकीदा है ये देवबंदियों के खिलाफ है। इस वजह से ये नक्शबंदी नहीं है, ये गुमराह लोग हैं, इसलिए मेरा कहना है। आप किस मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं? मैं आला हजरत से ताल्लुक़ रखता हूँ। हाँ तो बस कीजिए, रहने दीजिए। बस क्योंकि आप लोगों की मुंह बंद हो जाती है आला हजरत के नाम सुनकर, क्योंकि नक्शबंदी नाम पे फ्रॉड करते हैं। करनी है बस, हम लोग को आपसे बात ही नहीं करनी। क्यों बात नहीं करना है? क्योंकि आप लोग काफिर हो, मुर्तद हो, बात कैसे करोगे? अरे भाई लोगों की औकात तो नहीं है, गई है, आप लोग फ्रॉड करते हो नक्शबंदी के नाम से। हो जाएंगे। बताओ, मुजद्दिद अल्फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह अगर न्याज फातिहा करते हैं तो बिदअती है ना? आप क्या फातिहा न्याज करने वाले बिदअती है ना? न्याज फातिहा करने वाले बिदअती है या नहीं आपकी नजर में? बिल्कुल देव का बंदर, बिल्कुल है। न्याज फातिहा करने वाले अगर बिदअती हैं तो मुजद्दिद अल्फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह के मकतूबात शरीफ में है ना, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के नाम पे न्याज फातिहा करने के बारे में। क्यों गलत सलत बात बोल रहे हो? बताओ। मुजद्दिद अल्फ़सानी के सिलसिला से आप नक्शबंदी कहलाते हो। मुजद्दिद अल्फ़सानी तो आपकी नजर में बिदअती है। अल्फ़सानी के मकतूबात में यही लफ्ज लिखा है कि हजरत आयशा न्याज फातिहा करती थी, ये लफ्ज लिखा है, तो मुझे फोटो खींच के भेजो मेरे पास। अच्छा बताओ, मुजद्दिद अल्फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं जो है इसाले सवाब के लिए मैं उम्महातुल मोमिनीन और अहले बैत अतहर सबके नाम से मैं न्याज करता था। मैं जो है उनके नाम से फातिहा करता था। एक मर्तबा को न्याज बोल रहे हो? फातिहा खानी जो करते हैं ना, मुरव्वजा फातिहा खानी क्या है? मुरव्वजा फातिहा खानी आपके यहाँ अलग है, मुजद्दिद अल्फ़सानी के यहाँ अलग है। जो मुजद्दिद अल्फ़सानी के यहाँ है ना, हम सब लोग करते हैं, तुम्हारी तरह नहीं करते हैं कि बैठ के फातिहा करके फिर बिरयानी तोड़ते हैं। अच्छा तो आप लोग कैसा करते हैं, जरा बता दीजिए ताकि हमारी गलत जो कुरान और हदीस में इसाले सवाब का तरीका है वो उस तरीके से इसाले सवाब करते हैं। तुम उसका नाम न्याज फातिहा रख दो और कुरान खानी रख दो, तो इसका मतलब क्या वो जायज हो गया क्या? अच्छा तो आप लोग जो कुरान हदीस के मुताबिक इसाले सवाब है तो उसको अगर हम न्याज और फातिहा रख दे तो नाजायज हो गया? नहीं, न्याज फातिहा ही नहीं, उसके अंदर बढ़ा चढ़ा के रखे हो, इसलिए उसका नाम बड़ा क्या बढ़ा चढ़ाना और क्या कम है, जरा बातें तफसील से बता दीजिए। वो नाम उस कुरान और हदीस में इसाले सवाब आया है, तो आपने दूसरा नाम क्यों रखा है न्याज फातिहा? तो इसाले सवाब भी अगर हम रखें, इसाले सवाब में हजरत मुजद्दिद अल्फ़सानी के अगर किताब से शाह वलीउल्लाह शाह अब्दुल अजीज उनकी किताब से अगर न्याज फातिहा दिखा दे तो मानोगे? मैं कह रहा हूँ न्याज फातिहा नहीं, तुम इसाले सवाब के नाम पर न्याज फातिहा दिखाओ, कहाँ लिखा है? इसाले सवाब की महफिल को न्याज कहने से क्या नाजायज हो गया? नहीं, सिर्फ महफिल को नहीं, उसमें उल्टे सीधे काम, उल्टे सीधे काम को हम हलाल कह रहे हैं। उल्टे सीधे क्या काम है? अगर फातिहा के लिए प्रोग्राम रखे, उसके सामने खाने की चीजें अगर तबर्रुक के तौर पर रखा जाए तो वो कहाँ से नाजायज हो गया? कहाँ लिखा है कि इसाले सवाब की मजलिस का प्रोग्राम रखा जाए? तो मुजद्दिद अल्फ़सानी ने खुद रखा ना। इसाले सवाब के प्रोग्राम की क्या जरूरत है? इसाले सवाब की जब इज्तिमाई तौर पर इसाले सवाब का प्रोग्राम होगा। अरे भाई इज्तिमाई तौर पर करो, चाहे जो करो, आप लोग सिर्फ उतना ही नहीं करते हो। कितना इसाले सवाब का मतलब है कि सिर्फ आप पढ़ो और इसाले सवाब कर दो, छुट्टी हो गई। आप लोग इतना ही करते हो। क्या बोल रहे हैं?
इसाले सवाब का मतलब है कि हम कुछ पढ़ें और इसाले सवाब कर दें। हाँ, क्या आप लोग इतना ही करते हो? तो हम भी इतना ही करते हैं, और कितना करते हैं? ऐसा तो है बताइए, नहीं हम भाई, ऐसा हम कोई थोड़ी काम अच्छे करते थोड़ी- हैं जो आपकी नज़र में गैर शरई हो? बता दीजिए कि आप ऐसा करते हो। आपके उलमा, हमारे उलमा के हवाले से बताइएगा। अरे भाई देखो, अभी हम दूसरे देखो काम अभी, में क्योंकि मशगूल हैं। आप जो है सिर्फ इल्जाम लगा सकते हो, और आपका पहले नंबर तो आपके जुल्फिकार नहीं नहीं, नक्शबंदी साहब ने अरे भाई कहा। सुने, एक मिनट सुनिए, एक आप मिनट तो मेरा सुनिए। सुनते नहीं। हमको- मैं तो अरे मैं तो भाई आपका सुनिए, सुनने के लिए एक ही मैंने मिनट। कॉल किया। मैंने कॉल मैं इनको कहा, आपको क्या सुन बोल पहले, रहा हूँ, मुझे पहले आप एक पर मिनट मेरा इल्जाम सुनिए, लगाने की कोई मेरी फिक्र बात नहीं पड़ी है, कंप्लीट, पहले समझे एक ना? मिनट में, एक मिनट होने हाँ, दीजिए। करिए कंप्लीट करिए। एक मिनट मैं कंप्लीट करता हूँ। पहले तो हाँ, जुल्फिकार करिए, नक्शबंदी कंप्लीट ने करिए। हमारे ऊपर हाँ। बहुत झूठा इल्जाम लगाया, कहा कि क्या बरेलवी के लगाया? साथ हमारा अकीदे का इख्तलाफ है और बरेलवी अकीदे के बिल्कुल एतबार है, से मुशरिक बिल्कुल। है। तो आप सिर्फ शिरक साबित करेंगे? बिल्कुल है, बताइए। बिल्कुल है। अकीदे में इख्तिलाफ भी कोई ढकी छुपी बात थोड़ी है। वही हमारे कौन सा शिरक है वो बता दीजिए। अरे भाई, ये सारी दुनिया में डंका बज रहा है। अभी मैं आपको सब गिनते गिनाते गिन बैठा हूँ के क्या? नहीं, गिन के एक पर बात होगी ना। नहीं नहीं अगर नहीं, आपको हमको 10 पर जरूरत ही एतराज नहीं है है वो सब तो गिनाने। 10 पर 10, अगर हमारे 10 अकीदा आपके हिसाब से गलत है तो एक अकीदा बयान कीजिए। हाँ, भाई बयान करने के मतलब नहीं, आपको पूरी किताब मिल जाएगी, लेकिन अभी मेरे पूरी पास किताब की मौका अभी नहीं जरूरत नहीं है। मैं आपके- आपसे अभी एक मसले के बारे में बात मैं करना क्या चाह रहा कह हूँ। रहा कौन सा हूँ, हमारा ये अकीदा आप पहली शिरकिया है बार वो आए हो बताइए। क्या हमसे? मैं क्या कह रहा हूँ, ये आप पहली बार आए हो हमसे इस चीज पर बहस करने? आपके उलमा से, हमारे उलमा से जमाने दराज से बहस हो चुकी है। अभी जिंदा है तुम्हारे उलमा, हमारे उलमा, आके बहस करवा लो। अब एक हमारे बार उलमा में जहाँ फैसला जाते हैं करो, आपके अटक- उलमा दुम दबा कर एक भागते हैं। मिनट, आज तक एक मैंने बार देखा में यही। फैसला करो अटक के, हाँ या ना, मानना है या नहीं मानना अभी है। एक मसला मुझे बता दीजिए। है आप किसी सिर्फ में दम? लफाजी कर सकते हैं, बता दीजिए। मैं कह रहा हूँ तुम्हारे उलमा में किसी में दम है कि एक बैठक में हाँ या ना फैसला करके उठे? अभी आप बताइए ना। अभी अरे अभी तो तुम हाँ बताओ। या ना फैसला होकर उठेगा। मुझे अभी आप बता जरूरत दीजिए। नहीं है, इसलिए कि हम लोग कर चुके हैं। आप लोगों आप को लोग कहीं मानने भी- वाले नहीं हैं। सुनो मौलाना, समझे ना? चुपचाप एक मिनट सुनो। दोनों एक साथ टकराने से कोई फायदा नहीं। बाद में आप, जब मैं बोलूँ नहीं, आप नहीं। खामोशी से सुनो। इटारसी में मुनाजरा हुआ, 3 दिन तक मुनाजरा हुआ। आप लोगों ने दावा किया था हाँ। माज़अल्लाह आला हजरत के कुफर का, हाँ। आपका दावा था। 3 दिन तक साबित नहीं कर पाए। और जिस घर में मुनाजरा हाँ। हुआ, घर वाले बरेली भी हुए। 400 लोगों ने तौबा हाँ। करके बरेली भी हुए। ये फैसला हर लाहौल जगह। और पढ़ो जहाँ यार, लाहौल पढ़ो, झूठ मत बोलो, लाहौल चलो पढ़ो। अभी चलो, झूठ साबित हो जाएगा कौन झूठा कौन सच्चा। जिस मोहल्ले में मुनाजरा हुआ एक काम उस करो, मोहल्ले में देख लो भारत- जाके। अभी एक मसले पे बात करो। कौन सा शिरिक हमारा तुम देख रहे हो, बताओ। एक शिरिक, बस 5 मिनट में बात कंप्लीट हो जाएगी। आपका वक्त जाया करना नहीं चाहता। बताइए, कोई एक शिरिक बता दीजिए। मैं चैलेंज करता हूँ, मैं साबित करूंगा देवबंदी मुशरिक है। मैं साबित करूंगा देवबंदी मुशरिक है, और आप साबित करो कि हमारा कोई भी शिरिक, अगर सबूत है आपके पास, साबित करो। चलो काट दिया सर। अब बताओ। ये इतने सारे मसला बताने वाले थे, पूरा लिस्ट बताने वाले थे, पूरी किताब दिखाने वाले थे, एक भी साबित नहीं कर पाया, कॉल काट के भागा। साला भगोड़ा देवबंदी।